Let us start chapter 14, Sources of Energy, session 6. In this lecture, we are going to study about a non-conventional source of energy, and in that we are going to study about solar energy. Okay, let us start. Alternative or non-conventional source of energy. With technological progress, our demand for energy increases day by day. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है ऐसे ही हमारी एनर्जी कंज्यूम करने का जो कैपेसिटी है और जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं हम वो भी इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है हमें नए नए इक्विपमेंट्स मिलेंगे जो एनर्जी कंज्यूम करके वर्क करते हैं. Our lifestyles are also changing. We use machines to do more and more of our tasks. पहले के टाइम पर हमारा लाइफस्टाइल एकदम सिंपल था. हम ज़्यादा मशीन्स नहीं यूज करते थे. And therefore, we require less energy. But nowadays, we use more machines. And therefore, the demand of energy increased. Our basic requirements are also increasing as industrialization improves our living standards. Industries as is progressing, our living standard is also improved, and we got many facilities like fan, AC, TV, vehicles, but to work they require energy, right? But in olden days, this all equipments were not there, and इसीलिए अब हमें एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के सोर्सेस को हमें एक्सप्लोर करना होगा. Let us understand activity 14.4. Find out from grandparents or their elders. That is, how did they go to school? कैसे स्कूल जाते थे वो? How did they get water from their daily needs when they are young? वो कैसे पानी लेते थे, कहाँ से पानी उनको मिलता था जब वो यंग थे? What means of entertainment did they use? वो खेलते थे, कैसे खेलते थे, क्या यूज करते थे खेलने के लिए, वो सब चीजें आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछना है. So what will happen? The answers will not match. Compare the above answers with how you do this task now. तो पहले वो अलग तरीके से करते थे, उसमें कम एनर्जी यूज होता था, बट अब जैसे ये सब चीजें हम करेंगे, ये सब चीज उसमें एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होता है पहले के टाइम से. Is there any difference? If yes, in which case more energy from the external sources is consumed? पहले के टाइम पे सब चल के जाते थे तो एनर्जी कम यूज हो रहा है, बट नाउ वी यूज व्हीकल्स, एनर्जी ज़्यादा जाएगा यहाँ पे. पहले के टाइम पे हमें वाटर हैंड पंप से मिलता था या वेल से, बट नाउअडेज यू यूज मोटर, electric motor, electric pump to get water from the underground. Okay, so here also more energy is used. And means of entertainment, मतलब खेलने के लिए क्या यूज करते थे? तो पहले के जमाने में फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल गेम्स ज्यादा खेलते थे, बट नाउअडेज चिल्ड्रंस आर यूजिंग
equipments, cycles, all these machineries they are using or equipments they are using which consumes energy. Okay. As our demand for energy increases, we need to look for more and more source of energy. जैसे जैसे हमारा डिमांड इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमें नए सोर्सेस ढूंढने पड़ेंगे जिससे हमें एनर्जी मिल पाए. We could develop the technology to use the available or known sources of energy more efficiently and also look to new source of energy. अभी हमें ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी पड़ेगी जिससे हम एनर्जी बहुत अच्छी तरह से यूज कर पाए. एंड वी ऑल्सो हैव टू फाइंड न्यू सोर्सेस ऑफ एनर्जी. हमें कहाँ से एनर्जी मिल पाए ऐसे कोई सोर्सेस भी फाइंड करने पड़ेंगे. एनी न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी we seek to exploit would need specific devices developed with that source in mind. तो हम अभी कोई भी नए सोर्स के बारे में मतलब रिसर्च कर रहे हैं उसमें से एनर्जी हमें लेना है तो हम उसके लिए एक पर्टिकुलर डिवाइसेस बनाएंगे. विदाउट डिवाइसेस वी कैन नॉट गेट एनी एनर्जी. Let us take one example. If water is flowing, we know that it has energy, that is kinetic energy in it. अब वो kinetic energy मुझे यूज करना है तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगा. When that flowing water strikes turbine, that turbine will start rotating and it will generate electricity with the help of generator. ये सब चीजें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा. How water is used to generate electricity. हाइड्रो पावर प्लांट में हमने देखा था पहले. ओके. तो हमें कंपलसरी डिवाइस चाहिए होंगे. विदाउट डिवाइस हम कभी भी किसी भी सोर्स में से एनर्जी नहीं ले पाएंगे. We shall now look at some of the latest source of energy that we seek to tap and the technology designed to capture and store energy from that source. So what we have to do, we have to find new sources of energy and for that we should develop some technology also. हमें कोई टेक्नोलॉजी भी ऐसे साथ में डेवलप करनी पड़ेगी जिससे वो एनर्जी को हम कैप्चर कर पाए एंड एक जगह पर स्टोर कर पाए. ओके. सिर्फ कुछ सोर्स ढूंढने से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी. हमें उसके ऐसा डिवाइस बनाना पड़ेगा जिससे हमें एनर्जी उसमें से मिले भी एंड एक जगह पे स्टोर भी कर पाए. ठीक है. तो ये सब चीज हम क्यों देख रहे हैं क्योंकि अभी एनर्जी डिमांड इन टुडेज जनरेशन एनर्जी डिमांड इज राइजिंग अप एंड अप एंड देयरफॉर हमें ऐसे ऐसे नए सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे जिससे एनर्जी को हम अच्छी तरह से स्टोर भी कर पाए एंड टेक्नोलॉजी को यूज कर कर सोर्स में से एनर्जी निकाल पाए. ठीक है. With the growing population and industrial needs, there is a need to look for source of energy which is environment friendly, economical, renewable and effective. तो हमें जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, इंडस्ट्रियल नीड्स बढ़ रहे हैं,
वैसे वैसे हमें सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढने पड़ेंगे, बट ऐसे सोर्स ढूंढेंगे हम जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे, इकोनॉमिकल मतलब चीप, दे विल बी लिटिल चीपर, कम रुपए खर्चने पड़ेंगे, रिन्यूएबल एंड इफेक्टिव. So the source of energy must have these four characteristics in it. So these are the few sources of energy which have these four characteristics. One is solar energy. You can see here solar panels we are using, solar cells. We are going to study about solar cell, solar panel in this lecture. These are the few other energy from the sea, tidal energy, wave energy, ocean thermal energy, nuclear energy. About these energies we are going to study in the coming sessions. In this session we are going to study about solar energy. Okay. Let us study about solar energy. Sun's heat which falls on the earth can be harnessed for various heating and lighting purposes. तो जो भी हमें सन की हीट मिलती है वो हम कुछ अच्छे चीज के लिए यूज करेंगे. सन से हमें हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी मिलती है, तो हम किसके लिए यूज करेंगे? हीटिंग के लिए एंड लाइटिंग के लिए. सिंपल है. मोस्ट ऑफ द सन्स हीट इज एब्सॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर. तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो जा रही है और बहुत ही कम हीट अर्थ के सरफेस तक पहुंचेगी. अर्थ के सरफेस तक बहुत कम हीट पहुंचता है. ओनली अ वेरी स्मॉल पोर्शन reaches the earth, and it is this energy that can be harnessed for energy purposes. तो हमें सोलर एनर्जी को ऐसे यूज करना है कि उसमें से हमें हीट भी मिले, लाइट भी मिले. और ऑलरेडी हमें पता है कि बहुत ही कम पोर्शन हमें मिल रहा है, पर उसको भी कैसे अच्छी तरह से यूज करना है, दैट वी विल सी नाउ. A black surface absorbs more heat as compared to white or reflecting surface under identical conditions. तो जो ब्लैक कलर का कोई भी सरफेस हो वो सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, मोर हीट. एंड इसीलिए आपने सुना होगा कि समर सीजन के अंदर हम डार्क कलर, ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनते. वी प्रिफर वाइट कलर क्लोथ्स और लाइट कलर क्लोथ्स बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स लेस हीट. अंडरस्टूड? तो ब्लैक कलर का सरफेस होता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है. तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज करेंगे डिवाइस बनाने के लिए. सोलर कुकर एंड सोलर वाटर हीटर्स यूज दिस प्रॉपर्टी इन देयर वर्किंग. ओके. तो ये प्रॉपर्टी जो है ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब्स मोर हीट, वो सोलर कुकर एंड वाटर कुकर दोनों में एंड वाटर हीटर उस दोनों में यूज होगा. You can see here. So rays are coming and striking the reflecting surface and they are meeting at one point. तो आप देखो यहाँ पे ये एक पॉइंट है, यहाँ पे जो मैंने सर्कल कर रहा हूँ. ये पॉइंट पर ये तीनों रे यहाँ पे आके ये, यहाँ से आके ये और ये आके ये तीनों एक जगह पर मीट हो रही है यहाँ पे.
यहाँ पे हम हमारा कुकिंग वेसल रखेंगे एंड फिर हमारा खाना पकेगा। अंडरस्टूड? Some solar cookers achieve a higher temperature by using mirrors to focus the rays of the sun. तो ये अलग अलग टाइप के सोलर कुकर है। ये बॉक्स टाइप सोलर कुकर है और ये है पैराबोलिक कुकर, सोलर कुकर। ओके, सोलर कुकर्स आर कवर्ड विथ अ ग्लास प्लेट। तो यहाँ पे आप देखो ये ग्लास प्लेट है। ओके, ग्लास प्लेट से कवर करते हैं। एंड ये क्यों करते हैं? लास्ट ईयर हमने ग्रीन हाउस गैस एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड वो किसके कारण हुआ था? ग्रीन हाउस के कारण हुआ था। तो उसमें हमें एक एग्जांपल लिया था कि कांच का बना हुआ ग्लास, द हाउस मेड अप ऑफ ग्लास is made, and inside that we grow the plants. So what generally happens, the sunlight enters that house or the greenhouse, but it cannot escape out of it. तो वो एक ग्लास का काम था। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि सनरेज अंदर जाएंगे बट बाहर नहीं आ पाएंगे। तो होगा क्या, अंदर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा। अंडरस्टूड? Now we will see working of solar cooker. It has a reflective mirror of highly polished glass so that the sun's light is focused into the system. तो एक ऐसे यहाँ पे देखो आप, it is a very polished, highly polished glass, and when the sunlight strikes, it is concentrated at one center, at one point where we will generally keep our cooking vessel. वहां पे हमारा खाना पकेगा। ठीक है? Then this is converted to heat energy. The black surface absorbs more heat. We all know these 2 points. कि यहाँ पे जो 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 भी रेज यहाँ पे आएंगे वो टकरा कर ये इधर जाएंगे, यहाँ पे जो आएंगे वो टकरा कर इधर जाएंगे, यहाँ पे आएंगे टकरा के इधर, यहाँ पे आएंगे टकरा के इधर। तो ये सब एक ही जगह पे मीट होने वाले हैं। ओके, the heat is trapped in the sealed glass or plastic bag such that heat does not escape. तो हमने जो आगे एक बॉक्स वाला सोलर कुकर देखा, दैट इज अबाउट दैट। तो वो जो बॉक्स था उसके अंदर सब डायरेक्शन में से हीट जाएगा अंदर, हीट विल गो इन, बट वो बाहर की तरफ वापस नहीं आ पाएगा। ठीक, तो ये ग्लास का काम था। अंडरस्टूड? द फूड गेट्स कुक्ड बिकॉज ऑफ दिस हीट, एंड फिर ये हीट के कारण फूड कुक होना स्टार्ट होगा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इट विल टेक मोर टाइम टू गेट कुक फूड कुक्ड। ओके, let us see few advantages of solar energy or using solar energy. So first one is clean. The word itself says the use of solar energy is very good. मतलब वो cleanest fuel है, उससे कोई pollution नहीं होगा। It is considered to the cleanest form of the energy as there is no emission of carbon dioxide like
like in a case of fossil fuels, which is one of the cause of global warming. तो जैसे fossil fuels ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं, वैसे ही सोलर एनर्जी नहीं करेगा। वो एकदम क्लीन फ्यूल है, क्लीनेस्ट फ्यूल। ओके, इट विल कीप आवर एनवायरमेंट ग्रीन, it will not pollute our environment. Renewable, that is solar energy is renewable source. There is an ample amount of energy available on the earth as long as the sun exists. तो सन जब तक है तब तक हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी हमें मिलते रहेंगे, and therefore it is renewable. Reliable मीन्स हमें कैसे उसको स्टोर करके रखेंगे, कैसे उसके ऊपर भरोसा करके रखेंगे। तो हियर इज द आंसर, द एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन द बैटरीज एंड सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अनरिलायबिलिटी। तो हम उसके ऊपर भरोसा कैसे करेंगे कि हमें वो अच्छी तरह से यूज में आएगा। तो हम सोलर एनर्जी को बैटरीज में स्टोर करके रख सकते हैं, एंड इसीलिए हम उसको वापस कभी भी यूज कर पाएंगे। रिडक्शन इन यूटिलिटी कॉस्ट, बहुत ही कम रुपए में हम यूज कर पाएंगे। एक्चुअली हमें पता है कि सोलर एनर्जी का जो यूज है वो ऑलरेडी कॉस्टलेस, वी डोंट रिक्वायर टू पे टू यूज सोलर एनर्जी। बट जो डिवाइस होंगे सोलर एनर्जी को यूज करके कन्वर्ट यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो हमें खरीदने पड़ेंगे। फ्री एनर्जी बिकॉज इट कैन बी ट्रैप्ड इजीली। वो फ्री एनर्जी है, हम कैसे भी कहीं से भी हम इजीली ले सकते हैं। सन होगा तो हमें सोलर एनर्जी मिलेगा एंड इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, द प्रोडक्शन इज लो ड्यूरिंग विंटर्स एंड ऑन क्लाउडी डेज। हम क्लाउडी डे पर उसको यूज नहीं कर पाएंगे। इंस्टॉलेशन एंड इनिशियल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल आर एक्सपेंसिव। तो जो डिवाइस हम सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए बनाएंगे वो थोड़े कॉस्टली होंगे, एंड स्पेस कंजप्शन इज मोर। तो वो डिवाइस को रखने के लिए हमें ज्यादा स्पेस चाहिए। Now let us see about solar cell. A device which converts solar energy into electricity is known as solar cell. सिंपल, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, तो वो है सोलर सेल। सोलर सेल कितना वोल्टेज डेवलप करता है, कितना इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको ब्लैंक में, एमसीक्यू में, ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं। तो रिमेंबर दिस वैल्यूज प्रॉपरली। जब शॉर्ट नोट पूछे सोलर सेल का तो ये सब डिटेल्स अंदर कंपलसरी होने चाहिए। A typical cell develops a voltage of 0.5 to 1 volt and can produce 0.7 watt. This is a watt, means power of electricity when exposed to sun. मतलब जो सोलर सेल है, एक सोलर सेल छोटा सा होता है, वो इतना वोल्टेज डेवलप करता है 0.5 to 1 वोल्ट एंड 0.7 वॉट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेगा। A large number of solar cells are combined in an arrangement called solar cell panel that can deliver enough electricity for practical use. तो बहुत सारे सोलर सेल, बहुत सारे, एक सेल है, ये एक सेल है, तो बहुत सारे सेल्स हम सीरीज में उसको करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मॉड्यूल। बहुत सारे मॉड्यूल्स एक साथ हम कनेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे स्ट्रिंग।
बहुत सारे स्ट्रिंग एक साथ होंगे तो उसको बोलेंगे एरे। तो ये होगा सोलर पैनल बोल सकते हैं, या इसको भी हम सोलर पैनल बोल सकते हैं। बहुत बार लोग इसको सोलर पैनल बोलते हैं या इसको, तो यू कैन से दिस इज अ सोलर पैनल। तो बहुत सारे सेल्स मिलकर हमें सोलर पैनल देते हैं, ठीक है। तो सोलर पैनल के पास इतने कैपेसिटी होगा कि सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा जिससे हम प्रैक्टिकल यूज कर पाएंगे। Works on the principle of photovoltaic effect. The photovoltaic effect, you just remember the name. The effect you are going to study in the higher standards. Just now remember its name. Silicon, which is used for making solar cells, is abundant in nature, but availability of the special grade silicon for making solar cell is limited. तो सिलिकॉन जो है हम यूज करते हैं सोलर सेल बनाने के लिए। तो यहाँ पे अंदर जो ब्लैक कलर का, मतलब ये जो ब्लैक कलर है, व्हाइट कलर दिख रहा है, वो एक लेयर्स में होते हैं सर। तो सिलिकॉन्स के लेयर हमें बनाने पड़ेंगे, तो सिलिकॉन यूज होता है सोलर सेल बनाने के लिए। ओके, बट हम कैसे यूज करते हैं, उसका एक स्पेशल ग्रेड होता है, वो पर्टिकुलर क्वालिटी का सिलिकॉन यूज होता है सोलर सेल बनाने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। बहुत एक्सपेंसिव होता है सेल एंड पैनल्स बनाना। व्हाई? Because silver used for interconnection of the cell in the panel further adds to the cost। जो एक सेल है दूसरे सेल को कनेक्ट करना है तो उसको हम सिल्वर से कनेक्ट करेंगे। एंड इमेजिन इन दिस पैनल हाउ मेनी सेल्स विल बी देयर। बहुत सारे सेल्स होंगे, तो हर एक सेल को कनेक्ट करने के लिए, इंटरकनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं सिल्वर। एंड सिल्वर कॉस्टली होता है, हमें पता है। Therefore, the panels and the cells are little expensive. Uses of solar cell. Artificial satellites and space probes like Mars orbiter use solar cells as the main source of energy। तो जो एनर्जी यूज करता है ये मार्स ऑर्बिटर, अपने मिशन मंगल मूवी है या मिशन मंगल हमारा जो एक टास्क था इसरो का, वो देखा होगा। तो उसमें जो सैटेलाइट हमने मतलब ऑर्बिटर भेजा था, वो ऑर्बिटर सोलर सेल, सोलर पैनल यूज करके एनर्जी लेता था। ओके, रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम्स और टीवी रिले स्टेशन इन द रिमोट लोकेशंस यूज सोलर सेल पैनल्स। So these are the few uses of solar cells. Traffic signals, calculators, street light, and many toys are fitted with solar cells। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सोलर सेल, सोलर पैनल यूज करके ये ट्रैफिक लाइट चलता है। यहाँ पे ये पैनल यूज करके स्ट्रीट लाइट चल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो छोटा सा सोलर सेल है, वो यूज करके पूरा कैल्शियम चार्ज बैटरी, मान लो कैल्सी का सेल है वो चला गया है, तो सोलर एनर्जी यूज कर कर हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं। एंड ये टॉयज होते हैं, तो यहाँ पे छोटे से सोलर सेल्स आपको दिख रहे हैं। वो टॉयज भी सेल्स, मतलब सेल प्रोवाइड करते हैं टॉयज के अंदर, एंड सोलर एनर्जी यूज करके वो टॉयज भी चल सकते हैं। Solar cell panels are mounted on specially
designed inclined rooftops so that more solar energy is incident over it. तो आप इसमें देखो यहाँ पे घर के रूफ पर इंक्लाइंड रूफ पर सन रेज प्रॉपरली फॉल हो रहे, तो ऐसे एक पोजीशन पर हम सोलर पैनल्स को सेटअप करेंगे एंड जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, ये ट्रांसफॉर्मर और वॉट एवर आप बोल सकते हो कनेक्टर, जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म होके हमारे घर के अंदर आता है. ओके. द डोमेस्टिक यूज of solar cell is however limited due to its high cost. तो हर एक जगह पे हर एक लोग ये सोलर सेल्स यूज नहीं करते बिकॉज उसका कॉस्ट भी हाई होता है. दैट वी ऑलरेडी नो व्हाई इट्स कॉस्ट इज हाई बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ सिल्वर. Advantages of solar cell. They have no moving parts and hence require little maintenance and work quite satisfactorily without any focusing device. तो सोलर सेल में एक्चुअली कोई मूविंग पार्ट ही नहीं है, तो उसका मेंटेनेंस होगा वो बहुत ही कम होगा एंड हम इसको इजीली यूज कर पाएंगे. देख, और उसको कहाँ पे सेटअप करेंगे, तो ये पॉइंट देखो थोड़ा इम्पोर्टेंट है. दे कैन बी सेटअप इन रिमोट एंड inaccessible hamlets or very sparsely inhabited areas in which laying of power transmission lines may be expensive and not commercially viable. तो हम ऐसे एरिया पे उसको सेटअप कर सकते हैं जहाँ पे हमें ट्रांसमिशन लाइन पावर स्टेशन सेटअप करना बहुत कॉस्टली और डिफिकल्ट होता है. वहाँ पे सोलर एनर्जी मिलेगा ही हमें, तो वहाँ पे हम सेटअप कर सकते हैं. मतलब विलेज एरिया में, हेमलेट्स मतलब आउट ऑफ सिटी का जो रूरल एरिया होगा वहाँ पे हम सब जगह पर सेटअप कर पाएंगे इजीली, जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन कॉस्टली पड़ेगा. The source of energy of solar cell is present in abundance. हमें पता है कि जितना एनर्जी हमें चाहिए उतना हमें सन में से मिलेगा. They do not cause any environmental pollution like fossil fuel and nuclear power. तो सोलर सेल को हम यूज करेंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा. जैसे फॉसिल फ्यूल का यूज करके पॉल्यूशन होता था, with the help of solar cell we will not get any pollution. And the last one, solar cell last a longer time and have low running cost. तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा कि बहुत ही कम मेंटेनेंस होगा उसका, बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको यूज कर पाएंगे. Disadvantages. The entire process of manufacture is very expensive. बहुत एक्सपेंसिव होता है, ऑलरेडी हमने वो देख लिया है. ठीक है. Also, silver is used for interconnection of these cells in the panel, which is very expensive metal. तो सोलर सेल को मैन्युफैक्चर भी जो मतलब प्रोसेस है मैन्युफैक्चर का वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, और उसके अंदर जो हम मटेरियल मीन्स मेटल जो यूज करने वाले हैं सेल्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए वो है सिल्वर, वो भी कॉस्टली होता है. A practical problem linked with the use of solar panel is regarding the storage of electricity generated by them. The electricity which is generated, this is generated, not general. Generated by
the electric storage of electricity generated by them. Okay, so it becomes little difficult to store the energy which is generated by solar cell. Study the topics properly. If you have doubt, feel free to contact. Okay, don't hesitate. Thank you.